الاقصی مسجد کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے. اسرائیلی فورس جو ہے وہ الاقصی مسجد کے اندر گھس گئی آج صبح کے 4 بجے اور لگ بھگ 300 سے زیادہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے اوپر حملہ کیا, ان کے ساتھ بد سے بدتر رویہ اختیار کیا اور اس رویے کے اندر 300 مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی حراست میں لے لیا. لگاتار اسرائیلی فورس اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشنز, ہیومن رائٹس اور جتنے بھی یہ بڑے ادارے ہیں یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے الاقصی مسجد کے اندر سے جو تصویریں نظر آئی ہیں, بالکل ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ہر مسلمان یا مسلمان کے سوا کوئی بھی کسی بھی دھرم کا انسان اگر ہوگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس وقت میں ایسے حالات وہاں پہ بنا کے رکھ دیے گئے ہیں کہ الاقصی مسجد کے اندر اور ابراہیم مسجد کے اندر لگاتار اسرائیلی فورس جو ہے وہ گرنیڈ, ویپنز, پسٹلز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائر گیس لے کر جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے اور ایسے پاک جگہ پہ جا کر وہاں کے مسلمانوں کو, وہاں کے جو مسلمز ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سمپل سی بات ہے کہ الاقصی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے ان لوگوں کو. وہ لوگ جب وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب وہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, جب وہ لوگ وہاں پہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی فورس ایک دم سے اٹیک کر دیتی ہے. یہ اٹیک ناقابل قبول ہے. اس اٹیک کو لے کر پورا دنیا جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اقوام متحدہ کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے جب بھی دونوں کنٹریز کے بیچ میں کبھی بھی کوئی بھی وار ہوتا ہے یا کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ اپنی بات رکھتا ہے. لیکن اس باری آپ نے دیکھا کہ لگاتار الاقصی مسجد ہو, آل ابراہیم مسجد ہو, کئی سارے اور بھی جو فلسطین کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم میں کوئی بھی بات نہیں کر پا رہا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کے اس پاک مہینے میں جتنے بھی مسلمان فلسطین کے اندر ہیں ان مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ان مسلمانوں کو اسرائیلی فورس نشانہ بنا رہی ہے, ان مسلمانوں کے اوپر جنسی تشدد ہو رہا ہے, ان مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی گولیوں کو, اپنے ٹائر گیس کا جو ہے وہ اسرائیلی فورس نشانہ بنا رہی ہے. 300 سے زیادہ وہاں پہ مسلمانوں کو اریسٹ کر لیا ہے اور لگ بھگ کئی سارے مسلمان جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہو چکے ہیں, جو کہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی اطلاع دینا چاہوں گا کہ ایک 24 سال کا بچہ جس نے ایک بڑے نیوز چینل کو یہ بتایا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اس بچے کا نام العمر ہے, اس نے یہ کہا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے ہی وقت جو ہے اسرائیلی فورس مسجد کے اندر گھسی, انٹر ہوئی اور اس نے ایک دم سے اس بچے کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہ بچہ شدید طور پہ زخمی ہو گیا. قرآن پڑھنے نہیں دیا اسے, نماز پڑھنے نہیں دی اسے, عبادت کرنے نہیں دی اسے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان عبادت نہ کریں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ الاقصی کے اندر مسلمان نماز نہ پڑھیں, وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ قرآن اور تلاوت نہ کریں. یہی اسرائیلی لوگوں کی پریشانی ہے, یہی وہاں کی حکومت کی پریشانی ہے. حالانکہ فلسطین کے مسلمانوں نے اور وہاں کے کافی بڑے نیتاؤں نے جو وہاں پہ بات رکھتے ہیں, جو وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی قبضہ نہیں ہے الاقصی پہ اور کہیں پہ بھی کسی بھی مسلمان کو نماز پڑھنے سے یا عبادت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے. پھر آخرکار کیوں بار بار غازہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیوں بار بار اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور آخرکار مسلمانوں کو کیوں ہر بار اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بار بار فلسطین کے اوپر ہی یہ ظلم و جبر کیوں. حالانکہ کئی سارے لوگ تو شدید طور پہ زخمی ہو گئے اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیلی فورس کے قبضے میں ہیں. ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, اور یہی گناہ ہے ایک مسلمان کا فلسطین کے اندر, جس مسلمان کو اس کی سزا مل رہی ہے. اور اقوام متحدہ اس چیز پہ خاموش ہے, اقوام متحدہ بات نہیں کر پا رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز بالکل خاموش ہے.
जब किसी भी देश पे कोई भी अटैक होता है तो अक़वामी मुत्तहिदा बात करता है, लेकिन मुसलमानों की जब बात होती है तो क्यों खामोश होते हैं सब? क्यों मुसलमानों की बारी कोई बात नहीं करता है? क्यों फलस्तीन के मुसलमानों पे जब जुल्म होता है तो कोई बात नहीं करता है? क्यों फलस्तीन के मुसलमानों पे जब जुल्म और तशद्दुद होता है तो कोई बात नहीं करता है? क्यों वहां के मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है? क्यों फलस्तीन के अंदर के मुसलमानों के ऊपर जो है वो इसी तरीके से बार बार टारगेट किया जाता है? वहां पे मासूम बच्चों की जानें ली जाती है, वहां पे उन बच्चों को टायर गैस गोलियों का निशाना बनाया जाता है, हर बार उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अल अक्सा मस्जिद जो है वो मुसलमानों की मस्जिद है और मुसलमान वहां पे नमाज पढ़ के रहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता है। और वहां पे क्यों मुसलमानों को इस तरीके से फलस्तीन के अंदर जो है वो टारगेट किया जाता है? कब तक एक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? कब तक एक मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के इस तरीके से दुख और दर्द को देखेगा? क्यों बार बार एक मुसलमान को फलस्तीन के अंदर निशाना बनाया जाता है? क्या मुसलमान होना एक जुर्म है? क्या रब की इबादत करना एक जुर्म है? क्या कुरान पढ़ना एक जुर्म है? फलस्तीन के अंदर जो वहां पे इस्राएली इस तरीके से अटैक करते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इस्राएल के जो हुकूमत है उन्हें सबक सिखाना चाहिए, अक़वामी मुत्तहिदा उन्हें सबक सिखाए। हर जगह से आवाज उठनी चाहिए फलस्तीन के मुसलमानों के हक में। आज रमजान के महीने में बार बार आप एक ऐसे मुल्क को निशाना बना रहे हैं जिस मुल्क में हमेशा जो है वो पिछले कई सालों से माजी में अगर आप देखेंगे तो दुख और दर्द दिखता है, जुल्म और सितम दिखता है। वहां के बच्चों की आंखों में खौफ है, वहां की खवातीन की आंखों में खौफ है, वहां की माओं की आंखों में खौफ है। किस चीज का? कि वहां पे जुल्म हो रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। और अफसोस है हमें इस बात का कि हाई लेवल के ऊपर कोई बात नहीं हो पा रही है और हर बार फलस्तीन के अंदर जो है वो बहुत जुल्म हो रहा है, वो बहुत जुल्म हो पा रहा है। हम आपको कुछ फिगर्स भी बताएंगे फलस्तीन को कि कितने इस वक्त वहां पे इंजर्ड हैं, कितना वहां पे जुल्म और सितम है और किस तरीके से वहां के ऊपर जो है वो इस्राएली फोर्स लगातार अटैक कर रही है। आज सुबह की नमाज के वक्त भी वहां पे अटैक हुआ है और हालांकि आज सुबह की नमाज के वक्त भी 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहां पे शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि अल अक्सा मस्जिद जो है वहां पे देर के रात भी काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, तशद्दुम हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं और जिन्हें वहाँ से भेजा गया है। और जो वहाँ के ऊपर जो जितने भी लीग्स हैं वो सब इसको कंडेम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबूल भी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीके से जो है वो किया जा रहा है और फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर ये एक जुल्म किया जा रहा है। 400 से ज़्यादा फलस्तीनी मुसलमान जो हैं वो अरेस्ट हैं और वो इस्राएली कस्टडी के अंदर हैं। और फलस्तीनी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी भी कोई भी बात नहीं सुन पा रहा है, हालांकि उनके ऊपर भी जो है वो लगातार इस्राएली फोर्स का अटैक हो रहा है। फलस्तीन के अंदर जो इस्राएली फोर्स हैं उनकी जानिब से जो है ग्रेनेड, टेयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इबादत गाहों के अंदर इतना धुआं हो चुका है कि सफोकेशन महसूस हो रही है लोगों को राइफल्स के साथ पीटा जा रहा है, बेल्ट्स के साथ पीटा जा रहा है। और वहां पे जो है वो एतिकाफ में जो मुसलमान बैठे हुए हैं उन एतिकाफ पे बैठे हुए मुसलमानों पे भी जुल्म हो रहा है। और बकर ओवैस 24 साल के बच्चे ने, स्टूडेंट है, जिसे डिटेन किया हुआ है वहां की आर्मी ने और खिड़कियां तोड़कर मस्जिद की वो अंदर घुसे और उसके बाद ग्रेनेड का और टायर गैस का सहारा लिया और बकर 24 साल के स्टूडेंट को बहुत बेरहमी से पीटा और मारने के बाद उसे अपनी हिरासत में ले लिया। बकर जो है वो वहां पे अल अक्सा मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा था। उसी दौरान में जो है वो कुछ लोग एतिकाफ के बैठने की सूरत में भी थे और जिन लोगों पे इस तरीके का जुल्म भी किया गया है। हालांकि ये भी हमारे पास ज़राए के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि फलस्तीन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो हॉस्पिटल्स भी इस चीज से भर चुके हैं कि उनके पास बेड ही नहीं अब अवेलेबल कि वो वहां पे इलाज किया जाए। हालांकि इस्राएली फोर्स मेडिकल इलाज भी नहीं फलस्तीन का होने देती है। इस्राएली फोर्स डॉक्टर्स को भी मना कर रही है कि आप इलाज मत करें हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई भी मेडिकल जो है वो सुविधा ना दे, कोई भी मेडिसिन ना दे। आप ये देख लेंगे मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है फलस्तीन के अंदर और आप ये देख लेंगे किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म किया जा रहा है, किसी और का नहीं बल्कि ये जुल्म जो है ये इस्राएली फोर्स कर रही है। और वो फोर्स जिसको लेकर चलते हुए इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया ये कह रही है कि इनके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अल अक्सा मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। यही सबसे बड़ी बात है और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लगातार अल अक्सा मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दर्दनाक हैं, वो काफ़ी
दुखी खबर के साथ ये बताना पड़ रहा है कि वहां पे 400 से ज्यादा लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब पता नहीं कितने लोगों की इंतकाल हो गया, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है जिन पर जुल्म किया इसराइली फोर्स ने फ़लस्तीन के अंदर। और वो लोग माना जाने किन हालात के में हैं, कहाँ जी रहे हैं। मैं तो सब लोगों से ये दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा, दुआ करो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह उन्हें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से अपने हक पे जो है वो डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं सब लोग, और जो जुल्म इसराइली फोर्स वहाँ पे फ़लस्तीन के मुसलमानों पे कर रही है वो नाकाबिल कबूल है। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।